پاکستان پہلگام حملے میں ملوث نہیں تھا. بھارت نے الزام تراشی اور پاکستان پر حملے کر کے عالمی قوانین کو رونق ڈالا. بھارت سے جواب طلب کیے گئے مگر کوئی جواب جمع نہ کرایا گیا. اقوام متحدہ نے بھارت کو آئینہ دکھا دیا. آپریشن سندور میں غیر قانونی اقدامات پر 60 روز میں جواب طلب کر لیا. خصوصی ماہرین کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ دہشت گردی کے خلاف کارروائی کے نام پر یک طرفہ فوجی طاقت استعمال نہیں کی جا سکتی. بھارت نے آپریشن سندور میں جو کیا اس سے بڑے تصادم کا خطرہ تھا. بھارت کی وجہ سے پاکستان میں جانی و مالی نقصان ہوا. پاکستان نے جواب میں دفاع کا حق استعمال کیا اور سلامتی کونسل کو اطلاع بھی دی. بھارت کو 60 روز میں جواب دینا ہوگا. But what we are witnessing now is material breaches by India that strike at the heart of Indus Water Treaty, with escalating consequences both for regional stability and sanctity of international law. We have observed unusual abrupt variations in the flow of Chenab River twice this year, during 30th of April to 21st of May 2025, and in the past week from 7th to 15th of December 2025. بھارت نے پاکستان کا پانی روکا یا دریاؤں کا رخ موڑا تو اقدام جنگ تصور ہوگا. نائب وزیر اعظم نے بھارت کو ایک بار پھر خبردار کر دیا. بھارت نے سنتاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل کیا. بھارتی اقدام عالمی قانون اور ویانا کنونشن کے آرٹیکل 26 کی خلاف ورزی ہے. پاکستان نے انڈس واٹر کمشنر کے ذریعے سفارتی اور قانونی راستہ اختیار کیا. بھارت منظم انداز میں معاہدے کو کمزور کر رہا ہے. عالمی برادری کو اس میں کردار ادا کرنا ہوگا. قانون اور مکالمے کے بجائے دھمکی، طاقت اور تشدد بھارت کا وتیرہ ہے. انسانی حقوق کے ماہرین کی رپورٹ نے بھارت کے غیر ذمہ دارانہ ریاستی طرز عمل کو بے نقاب کر دیا. اقوام متحدہ کی رپورٹ پاکستان کے دیرینہ موقف کی توثیق ہے. صدر مملکت کا اقوام متحدہ کے انسانی حقوق ماہرین کی بھارت سے متعلق رپورٹ کا خیر مقدم. صدر مملکت آصف علی زرداری نے سنتاس معاہدے کی ایک طرفہ معطلی اور بھارتی رویے پر اقوام متحدہ کے مشاہدات کو سراہا. بنگلہ دیش میں طالب علم رہنما عثمان ہادی کی ٹارگٹ کلنگ سے شہادت کے بعد ہونے والے مظاہرے شدت اختیار کر گئے. بنگلہ دیشی مظاہرین نے احتجاج کا دائرہ کار مزید وسیع کر دیا. مظاہرین کی جانب سے بھارتی وزیر اعظم کے پتلے نظر آتش، مظاہرین کی بھارتی ایجنسی را اور مودی کے خلاف شدید نعرے بازی. مودی کو عثمان ہادی کا قاتل قرار دے دیا. مظاہرین نے کہا مودی ہمارا مجرم ہے. عثمان ہادی کے انقلاب نے مودی کو آگ لگا دی ہے. اے ٹی سی لاہور سے 9 مئی کے مقدمات کا ایک اور فیصلہ آ گیا. 9 مئی کے دوران توڑ پھوڑ کے ایک اور مقدمے میں پی ٹی آئی رہنماؤں کو سزا سنا دی گئی. ڈاکٹر یاسمین راشد، محمود الرشید، اعجاز چودھری اور سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی. شاہ محمود قریشی مقدمے سے بری ہو گئے. اے ٹی سی لاہور کے جج نے کوٹ لکھپت جیل میں فیصلہ سنایا. ٹرائل میں 56 گواہ پیش ہوئے. 4 ملزمان اشتہاری قرار. اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے بعد جسٹس طارق محمود جہانگیری کو ڈی نوٹیفائی کر دیا. صدر نے وزیر اعظم کے مشورے پر عدالتی فیصلے کی روشنی میں جسٹس جہانگیری کو ہٹانے کی منظوری دے دی. چیف جسٹس کی منظوری کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کا آئندہ ہفتے کا ڈیوٹی روسٹر جاری. طارق جہانگیری کی برطرفی سے جسٹس محسن اختر کیانی کا ڈویژن بینچ غیر فعال ہو گیا. آئندہ ہفتے 3 ڈویژن بینچ اور 6 سنگل بینچ کیسز کی سماعت کے لیے دستیاب ہوں گے. جواب نہیں نکلے گا ان کے پاس. ہم نے تو جواب دے دیا نا. جب ان کی ذات کے اوپر بات آئے گی تو جواب نہیں نکلے گا. اور ہم اس لیول پہ دینا نہیں چاہتے جس لیول پہ یہ گر رہے ہیں. گلٹی ہے. Who dare you? How dare you? Guilty ہے. دو جواب اس کا.
जो मर्जी अपनी करतूतें देखो, फिर दूसरे से सवाल पूछो। You shut up, you shut up। मेरे मुझसे कुछ नहीं लगा तुम्हारे लिए। तुम्हारे तुम होते कौन हो इस तरह बात करने वाले? क्या कमेटी इजलास में निजी हाउसिंग स्कीम पर बात करना जुर्म है? मुझ पर इल्जाम न लगाएं। इस सवाल से मेरी जाती तजलील हुई। कायमा कमेटी बराए मवासलात में विफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान और सेनेटर पलवशा खान में शदीद तलख कलामी, दोनों के एक दूसरे पर लफ्जी वार। पलवशा खान ने कहा कि एक सवाल को आप जाती क्यों समझ रहे हैं? अलीम खान बोले, मैं तुम्हारे करतूत सबके सामने रखूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? सेनेटर पलवशा खान का चेयरमैन कमेटी के सामने शदीद एहतजाज, मुआफी का मुतालबा किया। जहाँ पर पहले ही कई इदारे कौम के स्पेशल बच्चों के लिए दिहाइयों से खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं, वहाँ पर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑटिज़म का, उसका आज संगे बुनियाद रखा गया है। और मुझे बताया गया खालिद मकबूल सदीकी साहब ने कि ये 2 साल में इदारा तैयार होगा, तो मैंने इनको कहा कि 2 साल नहीं, इसको 1 साल में मुकम्मल होना चाहिए। और जनाब खालिद मकबूल सदीकी साहब ने और सेक्रेटरी साहब ने इस बात का वादा किया है कि इंशाअल्लाह ये इदारा 1 साल में मुकम्मल हो जाएगा। खुसूसी बच्चों को मुआशरे में मकाम दिलाना हुकूमत वक्त पर फर्ज है। खुसूसी बच्चों की तरबियत हमारा इज्तिमाई फर्ज है। जो भी इस कार्य खैर में हिस्सा डालेगा वो दुनिया और आखिरत दोनों कमाएगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में ऑटिज़म के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का संग बुनियाद रख दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ऑटिज़म सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए 15 कोचेस का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म के ऑटिज़म से मुतासरा ज़ेरे तरबियत बच्चों से मुलाकात, शफकत का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की टैक्स चोरी के खिलाफ इक़दामात मज़ीद तेज करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत एहतियात की कारकर्दगी से मुतालिक हफ्तावार जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, टैक्स चोरी और स्मगलिंग के खिलाफ किसी किस्म की नरमी नहीं होगी। इजलास में इज़दाद स्मगलिंग इक़दामात और दीगर अमूर पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर पेट्रोलियम मसनूआत की नकलो हमल के लिए GPS ट्रैकिंग सिस्टम नाफिज कर दिया गया। NFC में हमारे कबाइल के जो एरियाज हैं वो हिट हो रहे हैं। जो यहाँ के मेगा प्रोजेक्ट्स है, अगर आप PSD में देख ले, PSD में सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के लिए 55 करोड़ रुपए रखे गए हैं। अगर उस हिसाब से अगर हम कोई अरबों का प्रोजेक्ट होगा 2-2.5 अरब का, वो 30 साल में कंप्लीट होगा। तो NFC में जो हमें शेयर नहीं मिल रहा वो हमें गहरी तौर पे इफेक्ट कर रहा है। और ये मुकदमा हम दोबारा फेडरल गवर्नमेंट के सामने रखेंगे और इस पे हम भरपूर मजम्मत भी करेंगे और हम अपने लोगों को आगाही भी देंगे। खैबर पख्तूनख्वा का एक बार फिर NFC के शेयर ना मिलने का शिकवा। मुआवने खुसूसी बराए KP शफी जान कहते हैं कि NFC के शेयर नहीं मिल रहे, जिससे मंसूबे ताखीर का शिकार हो रहे हैं। 4,500 अरब रुपए विफाक ने सूबे के देने हैं। हुकूमत जो मर्जी कर ले, NFC का मामला इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। गवर्नर राज तो पंजाब और सिंध में लगना चाहिए। पंजाब पुलिस करप्शन में मुल्क में नंबर 1 पर आई है। पंजाब में इदारों की मॉनिटरिंग सख्त कर दी गई। वज़ीर आला खुद निगरानी करेंगी। पंजाब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट से तमाम इदारों के स्टाफ व अफसरान की निगरानी होगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट कायम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज डैशबोर्ड के जरिए सूबे भर की लाइव मॉनिटरिंग करेंगी। पंजाब में पहली बार वर्चुअल टूर वॉल कायम। हर अफसर व एहलकार की हाजिरी और कारकर्दगी की निगरानी होगी। खातून अव्वल बीबी आसफा भुट्टो जरदारी की बख्तावर कैडेट कॉलेज में 5वें संगीत पास आउट की परेड शिरकत। खातून अव्वल की जानिब से आर्ट एंड साइंस एग्जीबिशन 2025-26 का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया गया। मार्च पास्ट, PT, जिम्नास्टिक और कराटे शो ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी ने
कैडेट्स में कॉलेज क्रिकेट और इनामात भी तकसीम किए। कहा, तलबा को नज़्म व ज़ब्त, एहतराम और इस्तकामत अपनाने की तलकीन करती हूँ। वज़ीर आला सिंध ने कराची के सनती जोन्स की तरक्की और बहाली के लिए 9.28 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। सनती इलाकों में सड़कों की तामीर और मरम्मत के पहले मरहले की भी मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कराची के सनती इलाकों के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से आला सतह का इजलास। नॉर्थ कराची, एफबी एरिया, साइट, सुपर हाईवे और बिन कासिम के लिए भी रकूम की मंजूरी। साइट कोरंगी और लांढी के लिए 2-2 अरब रुपए मुख्तस। हवेली लखा में साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर अहमद भट्टो मरहूम की रस्म कुल अदा कर दी गई। रस्म कुल में अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रस्म कुल में मियां मंजूर अहमद भट्टो मरहूम के बड़े साहिबजादे मियां मुअज़्ज़िम जहांज़ेब भट्टो की दस्तार बंदी भी की गई। मियां मुअज़्ज़म भट्टो वालिद गिरामी के नक्शे कदम पर चलने के लिए पुरज़्म। कहा, वालिद मरहूम की खिदमत मशअल राह हैं, इलाके और सूबे की खिदमत जारी रखेंगे। रस्म कुल में वफाकी वज़ीर ममलकत चौधरी अरमगान सुबहानी, PTI रहनुमा MNA लतीफ़ खोसा, MNA रियाज फतेहाना, साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली सिब्तैन खान, MPA मियां नूरुल अमीन नासिर भट्टो, MPA मलिक अली अब्बास खोखर और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। लाहौर में पंजाब असम्बली MPA हॉस्टल्स की ज़ेर तामीर इमारत में नामालूम शख्स क्रेन पर चढ़ गया। असम्बली स्टाफ, सिक्योरिटी हुकाम और रेस्क्यू एहलकार पंजाब असम्बली की ज़ेर तामीर इमारत में फौरी तौर पर पहुंचे। वज़ीर आला पंजाब के मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी अमूर ज़ीशान मलिक भी मौके पर पहुंचे। मुआविन ख़ुसूसी ज़ीशान मलिक के क्रेन पर चढ़े शख्स से फ़ोन पर मुज़ाकरात कामयाब होने पर क्रेन पर चढ़ने वाले शख्स को बाहिफाजत नीचे उतार लिया गया। और तेज बारिश ने दुबई को डबो दिया। दुबई के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश के बाद मामूलात जिंदगी मुतासिर। बारिश और खराब मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र वर्क फ्राम होम पॉलिसी नाफिज कर दी गई। हुकाम के मुताबिक अगले एक रोज में मौसम की सूरत हाल बतदरीज बेहतर होने की तवक्को है। दफातर में सिर्फ जरूरी अमले की हाजिरी देने की इजाज़त। महकमा मौसमियात ने दुबई और अबू धाबी में शदीद मौसम की वार्निंग भी जारी कर दी।